Salutations, my dear future leaders. How are you all? This is Hershey, your science buddy. Today we are continuing chapter number 7, transportation in animals and plants. Transportation. So transportation is a medium to commute from one place to another. Similarly, in our body, in animals' body, in all living creatures' body, there is a transportation system we will read in this chapter. So the topics of this chapter gonna be the circulatory system, circulation, right? Transportation of materials in small animals. Next topic, transportation of materials in plants, blood circulation in human, and excretory system, right? So लास्ट चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. वेस्ट कैसे बाहर आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसके थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डू द वार्म अप एक्सरसाइज. So before starting the chapter, we have warm-up exercise. Name the following in which some statements have been given. We'll study these statements and according to the statements, we need to give the name. First is framework of bone which gives shape to our body. So ऐसा frame जो हमारी body को shape देता है, तो which is none other than skeletal system. Next is joint where our neck joins the head. तो ऐसा joint जो हमारी neck में है और neck से head को joint करता है, this is atlanto-occipital. This is the joint name, atlanto-occipital. Next is hard structure that forms the skeleton. So that hard structure is bones. Bones are hard and many bones, they are joined together and making skeletal system. Next is joint which allows movement in all direction. So we have different types of joints in our body, right? So because of the joints we are able to move our body parts, right? So it is asking a joint which allows movement in all the direction. So we have ball and socket joint. So this joint is present in our shoulder as well as in hip area, right? So all the direction we can move our arm and legs. Next is part of the body with fixed joint. तो fixed joints हमारे skull में होते हैं. Help in the movement of body by contraction and relaxation. तो contraction and relaxations हमारी muscle में होता है. So muscle is the correct answer. So children, let's begin with chapter introduction. All living organisms includes plants, animal and humans need food, water and oxygen for their sustenance and engagement in various activities. तो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या चाहिए? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल इन वेरियस एक्टिविटीज. द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेसेस फूड. अब जो खाना हम खाते हैं, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. और जो फूड है उसके बाद क्या होता है? फूड खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है. ब्रेकिंग इट डाउन इनटू न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैट्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एज इट इज़ बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. बट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. एंड कार्बोहाइड्रेट इट कम्स एंड इट चेंजेस इनटू द ग्लूकोज. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म. Proteins break down into the amino acids and fats breaks down into glycerols and fatty acids, right? So the circulatory system then transport these nutrients from the digestive system to all parts of the body. उसके बाद जब डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होगा
कि उसको बॉडी की हर सेल तक पहुंचाना। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग सेलुलर एनर्जी रिलीज सर्टेन अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आर जनरेटेड, और एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस बाय प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसको द एक्सक्रीटरी सिस्टम is responsible for eliminating these substances and excess water from the cell। और respiration कहाँ होता है? We know it, internal respiration, cellular respiration, क्योंकि सेल में होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं, जिसका और किसका काम होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है इन वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फूड विद इन आवर बॉडी डिमांड्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन ये सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में हैं और इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। We have already learned about the digestive and respiratory system earlier. Now let's explore new substances are transported within the body and the processes involved in eliminating of waste material। यानी कि इस चैप्टर में हम किन दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे? We are studying the circulatory system and excretory system। So circulatory system क्या होता है? It is responsible for transportation of digested food, gases and waste material to and from all cells of the body। तो हमारे खाने को, डाइजेस्टिव फूड को सेल तक ले जाना और सेल के बाय प्रोडक्ट्स को यानी कि वेस्ट को वापस लेकर आना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो किस में मिक्स हो जाता है? करेक्ट, इट गेट्स मिक्स्ड विद ब्लड, और ब्लड इज कैरिड बाय द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स क्या होती है? कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। कलेक्टिवली इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, और ब्लड को पंप करता है हार्ट। So blood is pumped by the heart and is carried through the network of blood vessels to every part of the body। So first is blood। blood में क्या होता है? white blood cells, platelets और red blood cells होते हैं। blood का पार्ट होता है या blood मिलकर बनता है red blood cells, white blood cells और platelets से। और ये तीनों चीज़ें WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स किस में फ्लोट करती हैं? इट फ्लोट्स इनटू लिक्विड मैट्रिक्स विच इज नोन एज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स फ्लोट करती रहती है। सो ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स एंड अडल्ट मैन कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 5 liters ऑफ ब्लड in his body। blood carries various nutrients and oxygen to all cells of the बॉडी। तो ब्लड किससे मिलकर बना होता है? एक लिक्विड होता है, लिक्विड को हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा के अंदर RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स फ्लोट करते रहते हैं। इनका काम क्या होता है? डाइजेस्टिव फूड को सेल्स तक ले जाना और सेल्स से वेस्ट को बाहर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लाना। फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या क्या काम है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट क्विकली गो थ्रू दीज पॉइंट्स। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल, दैट वी नो। ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द बॉडी, राइट। सो बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल में है और वाटर है उसको भी ब्लड ही लेकर आता है, और जो हम लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज होती है उसको भी सेल तक ले जाने का काम ब्लड का होता है। इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंसेस, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं जो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। वाई कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम? क्योंकि कार्डियो मीन्स हार्ट। हार्ट क्या है? पंपिंग मशीन है। वेस्कुलर सिस्टम मीन्स वेसल्स। सो वेसल्स कौन सी हैं? ब्लड वेसल्स विच कंटेन्स वेन्स, आर्टरीज एंड blood capillaries, right? Arteries are much thicker than veins and have several layers of muscles as they must cope with the pressure of each heartbeat।
तो क्या होता है जब पंप करता है हार्ट, तो वो एकदम से ऐसे पंप करता है, लाइक अगर आप अपना हैंड इस तरह से करो, एक मुट्ठी बना लो एंड देन सडनली यू जस्ट ओपन इट, राइट, इस तरीके से पंपिंग होती है ब्लड की, और ब्लड पंपिंग होती है हमेशा हमेशा आर्टरीज में। सो इसलिए आर्टरीज की वॉल्स थिकर होती है ताकि वो इस जर्क को टॉलरेट कर पाए, राइट, इसको हैंडल कर पाए, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिकर होती है। सो स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। फर्स्ट इज प्लाज्मा, इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट जो होता है वो ब्लड का प्लाज्मा होता है। 92% क्या होता है, वाटर होता है, और इसका कलर कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर्ड, लाइक समवॉट लाइक not completely white but little off-white sort of a thing, straw liquid fluid। और इसमें क्या होते हैं, सारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स यानी कि RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। इट ऑल्सो कंटेन्स, इसमें मिनरल्स भी होते हैं, कौन कौन से, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम एंड प्रोटीन्स, यानी सब कुछ ब्लड में ही होता है। ब्लड प्रोटीन्स हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड क्लॉटिंग ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। सो जब चोट लगती है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो जब ब्लड अगर कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहेगा तो क्या होगा, ब्लड क्या होगा, फाइनली पूरा ब्लड बॉडी का खत्म हो जाएगा और पेशेंट जो होगा या जिसको चोट लगी है वो मर सकता है, राइट। तो इसका क्या होता है कि हमारा ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट कर देता है। Plasma is a medium by which blood cells transported around the body in the blood vessels। तो ये सब चीज़ें कब फ्लोट कर पाएंगी, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब कब फ्लोट कर पाएंगे, जब कुछ ना कुछ लिक्विड होगा, और वो लिक्विड मीडियम क्या है, प्लाज्मा। नेक्स्ट इज RBCs। RBCs को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, RBCs exhibit a disc-like shape and are infused with red pigment known as hemoglobin। जैसे हमें पता है कि प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, सिमिलरली हमारे ब्लड में रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। और रेड ब्लड सेल्स डिस्क शेप में होती हैं, दिस टाइप ऑफ disc shapes। Hemoglobin imparting the characteristics of red color to the blood। Hemoglobin binds with oxygen facilitating the transport of this vital gas within the blood stream। तो हमारी ब्लड में क्या करता है, जो RBCs होती हैं, RBCs के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं, और RBCs क्या करती हैं, हम इस ऑक्सीजन को सेल्स तक ले जाती है, राइट। जब ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगी देन ओनली रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस, अदरवाइज रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, राइट। सो द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन वुड रिजल्ट इन ऑक्सीजन डिप्रीवेशन फॉर द सेल्स, पोटेंशियली लीडिंग टू एनीमिया if its level of the blood are insufficient। और जिन लोगों में हीमोग्लोबिन कम होता है उनको कौन सी बीमारी होती है, इट इज एनीमिया, और उन पेशेंट्स को एनीमिक बोला जाता है। सो ब्लड्स आर इनसफिशिएंट। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज। और ये हमारी बोन मैरो में बनती रहती हैं, रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, नहीं बनती हैं, पुरानी ख़त्म होती हैं। और लाइफ स्पैन ऑफ सिंगल ब्लड RBCs इज रेड ब्लड सेल्स का एक लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, राइट। सो द बोन मैरो सिचुएटेड विद इन द बोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और क्या होता है कि 5 मिलियन एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट एक इंसान की बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली, राइट। ये कोई एक्यूरेट नहीं है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, क्योंकि किसी के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, किसी में हीमोग्लोबिन कम होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन एरिथ्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। तो ये प्लाज्मा है स्ट्रॉ कलर का, इसमें ये वाइट ब्लड सेल्स है, ये ब्लड वेसल है, ये RBCs है यानी RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स हैं। तो ये ब्लड का स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें प्लाज्मा में फ्लो करती हैं। नेक्स्ट इज WBC विच इज़ वाइट ब्लड सेल्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर लार्जर देन RBCs।
सो देयर मेन फंक्शन इज फाइट अगेंस्ट जर्म्स. सो इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि जो भी जर्म्स अटैक करते हैं हमारी बॉडी में, सो WBCs आर रिस्पॉन्सिबल टू किक आउट दीज जर्म्स और किल दीज जर्म्स, राइट, which cause various infection diseases. So that is why these are also called soldiers of the body. WBCs are of different types which have different shapes and lifespan, right? क्योंकि एंटीबॉडीज भी बोला जाता है इनको. किसी भी कोई भी हमारा जर्म अगर हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है और WBCs फाइट करती हैं. जब फाइट करती हैं तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं और हर इन्फेक्शन की अलग तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं. तो इसीलिए इट इज़ रिटन दैट दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट शेप्स. देयर आर अबाउट 5,000 to 10,000 ल्यूकोसाइट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में बहुत छोटा अमाउंट है ब्लड का, जिसमें कि 5,000 से 10,000 ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स भी डिस्क शेप की होती हैं और ये बोन मैरो में बनती हैं लाइक RBCs. तो बोन मैरो में क्या क्या बना? RBCs बने और बोन मैरो में बना प्लेटलेट्स. So but they are very small in size, about 2 to 4 micrometer in diameter. बहुत छोटी होती हैं प्लेटलेट्स, 2 to 4 micrometers in diameter. They have lifespan about 7 to 10 days. तो प्लेटलेट्स बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं. There are about 1,50,000 to 4 lakh platelets per microliter of blood. एक माइक्रोलीटर में कितने प्लेटलेट्स होते हैं? 1,50,000. 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स हर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में होते हैं. द मेन फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स इज टू हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग इन केस ऑफ एनी इंजरी. अ पर्सन कैन ब्लीड टू डेथ इफ देयर इज नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. अगर ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? जिसको चोट लगी है वो पर्सन मर जाएगा, क्योंकि सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा बॉडी से. नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स. तो अब ब्लड ऐसे ही तो हमारी बॉडी में नहीं घूम रहा ना, राइट? अगर ऐसे ही घूमता रहता तो बाकी ऑर्गन्स का क्या होता? तो इनको ब्लड जो है वो फ्लोट करता है ब्लड वेसल्स में. सो ब्लड वेसल्स डू नॉट blood does not spill everywhere in our body when it leaves the heart. तो उसको क्या होता है? फ्लो करने के लिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन आवर बॉडी. दीज आर नोन एज ब्लड वेसल्स. अब पानी भी ऐसा तो नहीं कि नदियों से सीधा हमारे घर में टैप पर आता है, राइट? उसको लाने के लिए भी एक प्रॉपर क्या होता है? टैप्स, वो प्रॉपर पाइप्स होते हैं. उन पाइप्स के थ्रू पानी हमारे घर आता है और वेस्ट वाटर बाहर जाता है, राइट? सिमिलरली ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड जो हार्ट जो है वो पंप करता है ताकि वो इधर उधर स्पिल ना हो. वो प्रॉपर ब्लड जो वेसल्स होते हैं उनके थ्रू ही फ्लो करता है. दीज ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट विद इन द बॉडी. देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स. और थर्ड होती है ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज सबसे छोटी होती है, आर्टरीज सबसे बड़ी होती है और वेन्स आर्टरीज से छोटी होती हैं. आर्टरीज जो होती है वो हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि पंपिंग ऑफ ब्लड विच इज़ बीइंग डन बाय द हार्ट. और उसमें क्या होता है? वो पंप कहाँ करता है? हार्ट आर्टरीज में करता है. इसलिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट एकदम जर्क देता है. सो आर्टरीज क्या करती हैं? हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, क्योंकि हार्ट जो ब्लड पंप करता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स्ड होती है वो आर्टरीज में ही करता है. सो ऑक्सीजन रिच ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू arteries. The blood within arteries exhibit a vibrant red color to withstand the higher pressure under which blood flows. बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है किसमें? आर्टरीज में, क्योंकि हार्ट जो है ब्लड पंप करेगा आर्टरी में. सो आर्टरीज फीचर रोबस्ट एंड इलास्टिक वॉल्स. कैसी होती हैं आर्टरीज? रोबस्ट यानी स्ट्रांग होती हैं और इलास्टिक वॉल्स यानी कि
उनके अंदर इलास्टिसिटी हो सकती है ताकि वो क्या करें, एक्सपैंड हो पाए और कॉन्ट्रैक्ट हो पाए. सो एज आर्टरीज ब्रांच आउट दे फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स नोन एज आर्ट्रियोल्स. ये मेन आर्टरी है, राइट, दिस इज द मेन आर्टरी. और फर्दर इसकी सब ब्रांचेस बन जाएंगी जिनको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं. द आर्ट्रियोल्स इन टर्न गिव राइज टू डेलिकेट ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज. अब उसके बाद फर्दर डिवीजन होता है जिसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं. तो इतना सारा सब डिवीजन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आर्टरीज साइज में बड़ी होती है, उसके बाद उसकी सब ब्रांचेस होती है आर्ट्रियोल्स एंड देन ब्लड कैपिलरीज. क्यों? क्योंकि सेल तक जो ब्लड है वो सिर्फ कैपिलरीज ले जा पाती है क्योंकि वो स्मॉलेस्ट इन साइज होती है अमंग 3, राइट. इसलिए ब्लड कैपिलरीज जो है वो सारा जो ब्लड है वो सेल तक पहुंचा पाती है और सेल से वेस्ट लेकर आ पाती है, राइट. सो capillaries play a pivotal role by providing cell with oxygen and nutrients while concurrently gathering waste products and carbon dioxide from them. Next is veins. Veins carry blood which is low in oxygen. इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं. और आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है. So veins carry blood which is low in oxygen and rich in carbon dioxide from body to heart. सेल से blood capillaries क्या करेंगी? सेल से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर कहाँ तक ले जाएंगी? वो ले जाएंगी लंग्स तक, क्योंकि लंग्स जो हैं फिर उसमें ऑक्सीजन मिक्स करेंगे जो हम ब्रीथ करते हैं, तो लंग्स उसको मिक्स करता है. दे हैव वॉल्स दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन टूवर्ड्स द हार्ट ओनली. तो ये वॉल्स हैं, राइट, ये वेन्स हैं. वेन्स जो है फिर वेन्यूल्स में डिवाइड होता है, अभी हम देखते हैं. सो वेन्स क्या होती हैं? वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि उसमें ऑक्सीजन कम है, लंग्स तक लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और फिर जो लंग्स है उसमें ऑक्सीजन मिक्स करता है और फिर ये ब्लड हार्ट तक आता है पंप होने के लिए. इन वेन्स में क्या होता है? वॉल्व्स होते हैं. वॉल्व्स किस लिए होते हैं? वॉल्व्स होने का रीज़न ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस फ्लो बैक ना करे, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो आगे की तरफ, राइट. अगर वो पीछे जाएगा तो क्या होगा? वो फ्रेश जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इतने लॉन्ग प्रोसेस का, राइट. सो जैसे हमने थर्मोमीटर पढ़ा था, थर्मोमीटर हमने लास्ट चैप्टर में जब हीट वाले चैप्टर में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसमें किंक होता है. किंक किस लिए होता है? ताकि मर्क्यूरी वापस ना आ पाए. सिमिलरली किंक को आप वॉल्व समझ सकते हो. सो वॉल्व्स इन द वेन दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन टूवर्ड्स द हार्ट ओनली, राइट. ये सिर्फ हार्ट की साइड ही ब्लड को आगे भेजता है, वापस नहीं जाने देता है. क्या? वॉल्स. सो वेन्स हैव थिन वॉल्स. इनकी जो वॉल्स होती है पतली होती है. क्यों? क्योंकि पंपिंग नहीं होती है इसमें, राइट. इसका काम है सिंपल ब्लड को फ्लो कराना, इसमें पंपिंग नहीं होती है, इसलिए वॉल्स थिन होती है. सो दैट इज वाई व्हेन अ वेन इज कट ब्लड कम्स आउट स्लोली एंड कंटिन्यूसली. अगर कोई वेन कट जाती है तो जो खून है वो धीरे धीरे आता है, राइट. द कैपिलरीज आर सप्लाइड विद ब्लड बाय आर्ट्रियोल्स एंड दे ड्रेन इनटू द वेन्यूल्स. तो आर्टरी की सब डिवीजन हुई आर्ट्रियोल्स. आर्ट्रियोल्स से ब्लड आया वेन्यूल्स में, राइट. और वेन्यूल्स आर माइन्यूट वेसल्स दैट ड्रेन ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज इनटू वेन्स. और वेन्यूल्स ने कहाँ दे दिया ब्लड? वेन्स में दे दिया, क्योंकि वेन्यूल्स भी छोटा स्ट्रक्चर है, ये इतनी इनका डायमीटर ज़्यादा नहीं होता है, बट वेन्स का और आर्टरीज का डायमीटर ज़्यादा होता है. सो वेन्यूल्स आर माइन्यूट वेसल्स दैट ड्रेन ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज इनटू वेन and many venules unite to form a
वेन, बहुत सारे वेन्यूल्स मिलकर वेन को बनाते हैं. सो वी हैव द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन. फर्स्ट डिफरेंस इज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में लेकर जाती है, और वेन्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लाती है. नेक्स्ट, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. राइट. सो आर्टरी, एक पल्मोनरी आर्टरी हमारे हार्ट में ऐसी होती है जो आर्टरी होते हुए भी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है. जबकि आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना. ओनली एंड ओनली पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. एक एक्सेप्शन वेन्स में भी है. वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लाती हैं. बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. राइट. सो देयर आर exceptions in the arteries as well as in veins, और दोनों ही केस में पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वेन है. हैव रिलेटिवली मोर इलास्टिक टिश्यूज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टिश्यूज हैं, इलास्टिक टिश्यूज हैं, ताकि वो जॉ को हैंडल कर पाएँ. हैव रिलेटिवली लेस इलास्टिक टिश्यूज. ट्रांसपोर्ट ब्लड अंडर हायर प्रेशर, और यहाँ पर लोअर प्रेशर होता है और नहीं होता. डो नॉट हैव वॉल्स, और वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, सो दैट ब्लड पीछे की तरफ फ्लो ना करे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे टुवर्ड्स द हार्ट. नेक्स्ट इज हार्ट. द हार्ट इज अ रोबस्ट मस्कुलर ऑर्गन. रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से बना हुआ है, इसमें कोई बोन नहीं है. इट्स अ मस्कुलर सिस्टम. सो इट इज सिचुएटेड विद इन द चेस्ट कैविटी ऑफ आवर बॉडी बिटवीन द लंग्स. हमारे दोनों लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में चेस्ट कैविटी होती है, वहाँ पर हार्ट होता है. एंड इट्स लोअर पार्ट इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द लेफ्ट, और नीचे का जो पार्ट होता है हार्ट का वो किधर की तरफ इंक्लाइंड होता है, झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड में. Right. Or the heart comprises 4 chambers. This is important. It always asks in the exam, how many chambers does a heart has? Right. Heart की कितने chambers होते हैं? So its answer is 4. 4 chambers. It is divided into 4 chambers, 2 atria, left and right. और इसको एट्रियम और ऑरिकल भी बोलते हैं. एट्रियम, ऑरिकल और एट्रिया, ये 2 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट. राइट. सो 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 आर्ट्रिया होते हैं. राइट. लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. सो टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं. द हार्ट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स नोन एज कार्डियक मसल्स. राइट. जो हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होती है, नॉन स्टॉप काम करती हैं. ऐसा नहीं कि दिन में कर रही हैं, रात को रेस्ट कर रही हैं, नॉन स्टॉप. और जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है तो क्या होता है, अ पर्सन इज नो मोर. Right. So it is the cardiac muscles. These muscles exhibit a remarkable capacity to contract and relax continuously without experiencing fatigue. रुकती नहीं है, stop नहीं होती है, non-stop working करती है. Right. So the primary function of heart is to pump blood throughout the body, and its size is approximately equivalent to the size of clenched fist. What is clenched fist? ये. Right. So इतना बड़ा almost एक heart होता है. So this is the clenched fist. So the septum acts as a partition between 2 chambers, namely auricle and ventricle. We all know कि 4 chambers होते हैं हार्ट में, auricle और ventricle, left auricle, right auricle, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. जो इनको क्या सेपरेट करता है, दिस इज नोन एज सेप्टम. सेप्टम है जो हार्ट के चैम्बर्स को सेपरेट करता है. सो वॉल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट्स वेंट्रिकल टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. सो वेन्स में वॉल्स होते हैं, सिमिलरली वेंट्रिकल्स में भी वॉल्स होते हैं.
ताकि ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना हो, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो. सो वॉल्स का काम क्या है? वन साइड मूवमेंट ऑफ ब्लड, right? So the left ventricle pumps oxygen rich blood to all parts of the body, while the carbon dioxide rich blood is pumped out from the right ventricle to the lungs via the pulmonary artery. So we will understand this with this picture. दो 4 chambers हम देखेंगे. This is the first chamber, right? ये है हमारा राइट एट्रियम एंड देन लेफ्ट एट्रियम, राइट. एंड ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल. और वेंट्रिकल्स में वॉल्स हैं, राइट. वेन्स में वॉल्स हैं, सिमिलरली वेंट्रिकल में भी वॉल्स हैं. सो ये वॉल्स हैं. एक ये है पल्मोनरी वॉल्व, राइट, दिस वन. एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये. सो ये दो वॉल्व इस साइड हैं और ये दो वॉल्व माइट्रल वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व, ये दो वॉल्व राइट साइड. सो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में वॉल्स हैं ताकि ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहे, ब्लड का फ्लो जो है वो बैकवर्ड ना हो, राइट. सो 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट. सो वॉल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट्स वेंट्रिकल टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. हमने वॉल्स देखे हैं, दोनों साइड होते हैं. द लेफ्ट वेंट्रिकल pumps oxygen rich blood to the all parts of the body. So लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के लिए. और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाता है? लंग्स की साइड भेजता है, राइट. सो लेफ्ट वेंट्रिकल pumps the oxygen rich blood to the part of the body, whereas right ventricle pumps deoxygenated blood towards the lungs, right. So कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाता है थ्रू द pulmonary artery. So where is pulmonary artery? Pulmonary artery is ये this one. अब क्या होगा जब हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू नो कि ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है. बट अभी हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं. ये ब्लू कलर वाली दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और अगेन दिस इज एक्सेप्शन क्योंकि आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, राइट. सो इन द ह्यूमन बॉडी, in contrast, the pulmonary vein is the only vein in the body transporting oxygen rich blood from the lungs back to the heart. So where is pulmonary artery? So this is the pulmonary artery and these are the pulmonary vein. जो pulmonary vein क्या करती है? veins का काम है deoxygenated blood को लेकर जाना, but pulmonary vein exceptional है जो oxygenated blood carry कर रही है. So the contraction and relaxation of heart muscles constitute a heartbeat. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको हमने एक हार्ट बीट मान ला, फिर एक्सपेंड हुआ फिर हार्ट बीट. कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कलेक्टिवली नोन एज हार्ट बीट. और एक अडल्ट में कितना होता है? 72 टाइम्स पर मिनट. सो ये हमारा पल्स रेट और हार्ट बीट आप कुछ भी बोल सकते हो. सो 72 टाइम्स पर मिनट. Abnormalities in heartbeat can be run by the taking ECG और electrocardiograph. तो ECG और EEG होता है जो अगर हार्ट बीट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चेक करने के लिए ECG और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कराया जाता है. About 66% of the body's blood is in the veins. कितना परसेंट? 66% जो ब्लड है
वो किस में है, वेन्स में, यानी कि वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 66% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में रहता है और 29% आर्टरीज में रहता है, यानी 29% क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आर्टरीज में है, और 5% ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज में होता है। तो हम समझ सकते हैं कि कैपिलरीज कितनी छोटी है, जिसमें कलेक्टिवली 5% ही ब्लड होता है। So how does a heart beat? Heart beats due to the rhythmic contraction and relaxation. एक रिदम है, एक पीरियड है, उसी इंटरवल के बाद हार्ट बीट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। कार्डियक मसल्स हैं जो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, द पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन मेक्स एज हार्ट बीट, और इसी को हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ही हम हार्ट बीट बोलते हैं। बिफोर ईच बीट द हार्ट फिल्स विद ब्लड, सो देन इट्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू स्क्वर्ट द ब्लड अलोंग, यानी कि स्क्वर्ट होती हैं और उसके साथ ब्लड को भी लेकर जाती हैं। ट्राई स्क्वीजिंग योर हैंड इनटू फिस्ट, जैसे कि आपने अपने हैंड को स्क्वीज किया और आपने एक मुट्ठी बना ली, फिस्ट बना ली। सो द सेम एक्शन योर हार्ट डज so that it can squirt out blood. The heart does this all day, all night, all the time. Blood is sent throughout our body with each heartbeat carrying oxygen and nutrients to the every cell. तो जैसे ही एक हार्ट बीट के साथ क्या होगा, हार्ट बीट के साथ ब्लड पंप होगा, सेल्स तक पंप होगा और उसमें ऑक्सीजन भी होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और सारी चीज़ें कहाँ तक जाएंगी, सेल तक पहुँचेंगी, राइट। सो द इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर यूज टू लिसन द साउंड ऑफ द पर्सन्स हार्ट बीट, दिस इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। सो डॉक्टर्स एग्जामिन कैसे करते हैं हार्ट बीट को, स्टेथोस्कोप की हेल्प से। दिस इज द स्टेथोस्कोप, इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस। सो ये आगे वाला जो होता है ये चेस्ट पीस होता है, that has a sensitive diaphragm. The flow of blood in the artery, this is called pulse. The normal pulse rate is 70 to 80 per minute. So pulse किससे connected होती है, आर्टरीज से। और आर्टरीज में जब डॉक्टर्स इसको एग्जामिन करते हैं, पल्स को ऐसे रिस्ट पर हैंड रख के एग्जामिन करते हैं ना, तो आर्टरी में क्या होता है, जैसे ही आपका ब्लड पंप होगा तो वो टक से आवाज़ आती है और वही पल्स होती है। और एक नॉर्मल पर्सन की 70 to 80 टाइम्स इन अ मिनट पल्स रेट होता है। काउंट द हार्ट बीट ऑफ योर फ्रेंड बाय फर्स्ट कीपिंग योर पाम ऑन हिज चेस्ट, फील द बीट केयरफुली। नाउ एट द place your ear on his chest, you can hear a repeated sound heard as लब डब। दो साउंड आती हैं, लब डब, राइट। हमेशा दो साउंड आएंगे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट विच वी कॉल हार्ट बीट। ट्राई काउंटिंग द हार्ट बीट ऑफ योर फ्रेंड पर मिनट। एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती हैं वो आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करो, कुछ रनिंग, कुछ साइकिलिंग, कुछ भी करो, एंड देन काउंट योर हार्ट बीट, तो वो इंक्रीमेंट होगा, राइट। सो ज़्यादा तेज़ी से हार्ट चलता है अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। वन मोर एक्टिविटी टू डिटरमाइन योर पल्स रेट, जेंटली प्लेस योर मिडल एंड इंडेक्स फिंगर्स टू द इनर साइड ऑफ रिस्ट एंड फील फॉर द थ्रोबिंग मूवमेंट्स, राइट। सो हम अपने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को कहाँ रखते हैं, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपने रिस्ट की इंटरनल साइड लाइक ऐसे रखते हैं, एंड वी फील द मूवमेंट। सो दीज पल्सेशंस आर कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरी एंड आर रेफर्ड टू द पल्स। और ये क्या होता है, आर्टरी में ब्लड फ्लो हुआ एंड दिस इज वी कॉल इट पल्स। तो हम यहाँ से अपना पल्स भी चेक कर सकते हैं, राइट। साइंस फैक्ट, इन वन डे द हार्ट बीट्स ओवर 1 लाख टाइम्स, in 1 year 38 million times, और 70 years तक 2.5 billion times हमारा हार्ट बीट करता है, राइट।
थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी करता है एज पर योर स्ट्रेंथ, फिजिकल एक्टिविटीज, कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट नॉर्मली दीज आर द ranges. So doctor use stethoscope to count your heartbeat per minute. At same time you can count your pulse rate as described in the above activity. और हम हार्ट रेट और पल्स रेट चेक करते हैं, वन इज द सेम थिंग, क्योंकि डॉक्टर्स के पास स्टेथोस्कोप होता है, वो हार्ट के पास लगा कर चेक कर लेते हैं, हमारे पास स्टेथोस्कोप नहीं होता, सो वी कैन चेक लाइक दिस, राइट. सो वन इज द सेम थिंग. सो हार्ट बीट एंड पल्स रेट आर इक्वल इन नंबर. ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन, अब हमने पढ़ा कि क्या क्या ब्लड में क्या होता है, कैसे हार्ट, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे. अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था, अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स इज कलेक्टेड बाय 2 मेजर वेन्स. 2 मेजर वेन्स होती हैं हमारे हार्ट में, जो मैं आपको दिखाती हूँ, विच इज इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा, राइट. ये 2 मेन्स होती हैं, 2 मेन क्या होती है, वेन्स होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं, राइट. सो द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, पूरी बॉडी से, लंग्स में नहीं होता क्योंकि लंग्स तो ऑलरेडी ऑक्सीजन फिल कर रहा है, राइट. सो इट इज कलेक्टेड बाय 2 मेजर वेन्स, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा. ब्लड फ्रॉम दीज वेन्स एंटर द राइट ऑरिकल. अब क्या होगा, यहां थोड़ा सा समझते हैं. तो ये इंफीरियर वीना कावा है, ये वेन है, ये वेन कहाँ खुल रही है, ये वेन खुल रही है आपकी राइट एट्रियम में, यहाँ ये देखो, ये इसकी ओपनिंग है. तो इंफीरियर वीना कावा क्या करती है, ब्लड लाती है डीऑक्सीजनेटेड और कहाँ दे देती है, राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से फिर ब्लड फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल में क्योंकि वॉल्स लगे होते हैं, तो क्या होता है, ये ब्लड वापस नहीं जाता है, ये ब्लड आ तो सकता है पर ये वापस नहीं जा सकता. तो अब राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो करेगा. तो ये एक एक्सेप्शनल है, आर्टरी है. आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाती है, लंग्स तक ले जाती है, राइट. So the right auricle contract and passes the blood into the right ventricle, ये मैंने आपको बता दिया है. Then it is pumped into the lungs by pulmonary artery. In the lungs, the blood get oxygenated and enters to the left auricle by pulmonary vein. अब lungs तक गया तो lungs ने क्या किया, lungs में उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दिया. अब ये क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में, राइट. लेफ्ट ऑरिकल में आया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर चला जाएगा बॉडी में. सो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड देन पंप टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो विच इज शोन हेयर. आपका यहाँ पर वेन्स नहीं दिखाए गए हैं, वेन्स हार्ट वाले डायग्राम में दिखाए गए हैं. सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा वो ब्लड लाती है डीऑक्सीजनेटेड, फिर लंग्स तक जाता है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन फिल करता है, देन इट विल कम टू दी right atrium, then right ventricle, and then finally it pumps to the different parts of the body. In English physician William Harvey AD 1578 to 1657 discovered the circulation of blood in human body for the first time. तो किसने किया था, एक फिजिशियन थे विलियम हार्वे, जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन्वेंट किया था. नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल इन स्मॉल एनिमल्स, अभी हमने क्या देखा था, सर्कुलेशन इन ह्यूमंस. अब एनिमल्स में भी सर्कुलेशन होता है. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इनमें कुछ वेल डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि एक ही सेल से सब कुछ बना होता है. सिंपल मेथड होता है डिफ्यूजन, राइट. सो हायर ऑर्गेनिज्म, सो इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है जिसके थ्रू क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, राइट. और मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म हमें पता है क्या होता है, जो सेल के अंदर
फिल्ड होता है. सो दिस इज कॉल्ड द, जो भी लिक्विड फिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. सम सिंपल मल्टी सेल्युलर एनिमल्स होते हैं जैसे लाइक हाइड्रा हुआ, स्पॉन्जेस हुआ, डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. इनमें क्या होता है, plays a crucial role, serves to supply food and oxygen to their bodies while simultaneously carrying away carbon dioxide and waste material. तो इनमें कोई डिफाइंड सर्कुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होता है. जो इनके पास सिर्फ सराउंड, जो पानी में जो ये रहते हैं और पानी की हेल्प से ही सब कुछ होता है. इनके अंदर भी कुछ डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है. और इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स में ट्यूब्यूल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन नोन एज मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स. राइट, सो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनके थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स पूरा का पूरा सर्कुलेशन होता है. तो हमने ह्यूमंस में देखा, इंसेक्ट में, एनिमल्स में. अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, वेस्ट को बाहर निकालना. दिस इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी एलिमिनेटेड बाय द प्रोसेस इजेशन. लास्ट स्टेप इजेशन होता है. इजेशन यानी एलिमिनेट करना, अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट करना, और वाटर एलिमिनेट करना, नॉन अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस एलिमिनेट करना, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करना भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम का काम है. सो पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हाउएवर आवर बॉडी सेल्स आल्सो रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट during various body activities. During these activities, waste products such as urea, uric acid and excess water are formed and must be thrown out. Undigested food तो है जो थ्रो करना है हमारी बॉडी से बाहर, बट हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है. कब, रेस्पिरेशन के बाद. इसके अलावा जब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है तो यूरिया और यूरिक एसिड भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं और जिसका एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है. सो दिस रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. और जितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सो सबसे पहले लंग्स. लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. सो लंग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सो लिवर क्या करता है, यूरिया और यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स. राइट, सो प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होते हैं, करेक्ट, अमीनो एसिड्स में. और जब ये ब्रेक डाउन होते हैं उस प्रोसेस में यूरिया और यूरिक एसिड फॉर्म होता है जो कि एलिमिनेट होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज स्किन. स्किन से क्या होता है, स्वेटिंग होती रहती है. स्वेटिंग होने से क्या होता है, वेस्ट बाहर निकलता है. राइट, सो एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हमारी स्किन से स्वेट की फॉर्म में बाहर आते हैं. सो 2 to 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स हमारी बॉडी पर होती है. 2 to 4 millions of sweating glands. So these are found under the skin. So they produce a watery secretion and open onto the skin and help to control the body temperature. स्वेटिंग क्या करती है, स्वेटिंग हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है. राइट, सो अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है. स्वेटिंग की वजह, उसके बाद क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है. इसके साथ साथ वाटर, क्योंकि स्वेटिंग होगी तो वाटर निकलेगा, वाटर होगा उसमें हमारी बॉडी के बहुत सारे सॉल्ट्स निकलेंगे. यूरिया, यूरिक एसिड का भी कुछ पार्ट स्वेटिंग के थ्रू बाहर आता है. सो मॉइस्चर ऑन योर बॉडी इवेपोरेट्स एंड प्रोवाइड अ कूलिंग इफेक्ट टू योर बॉडी. तो जब ये मॉइस्चर यानी कि जो पसीना होता है वो आता है स्वेटिंग ग्लैंड से, फिर वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मीन्स कूल हो जाते हैं हम. नेक्स्ट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूरिनरी सिस्टम. किडनीज. किडनीज बहुत बड़ा या कह सकते हैं किडनी सबसे ज़्यादा फिल्टर करता है इम्प्योरिटीज़ को हमारे ब्लड से. सो किडनीज फिल्टर द ब्लड टू फॉर्म यूरिन विच इज़ एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड. सो कुछ पार्ट तो स्वेटिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बट मेन पार्ट कौन करता है फिल्टर आउट,
किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनीज होती हैं एक पर्सन में। अब हम यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और वी कॉल इट यूरिनरी सिस्टम। सो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सो दीज इंक्लूड द पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो इन सबको कलेक्टिवली हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, राइट। सो दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज द राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों हैं यूरेट्रल, और उसके बाद ये ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और देन फाइनली ओपनिंग जो होती है वो होती है यूरेथ्रा। So the kidney characterized by bean-shaped structure measure approximately 10 centimeter in length and 5 centimeter in width. किडनी की क्या साइज है? 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। In adults, the kidneys are paired structure situated behind the stomach with one kidney positioned on each side of the बैकबोन। तो हमारे बैकबोन के दोनों तरफ एक एक किडनी होती है। सो द नेफ्रॉन सर्व्स एज फंडामेंटल फिल्टरिंग यूनिट इन द किडनी। ईच किडनी कंटेन्स मिलियन ऑफ दीज टाइनी nephrons. So main smallest unit of kidney which is nephrons, एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्योरिटीज को फिल्टर करने के लिए, राइट। सो विद इन द नेफ्रॉन्स वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड। जो किडनीज क्या कर रही है? सिर्फ लिक्विड पार्ट फिल्टर कर रही है, राइट। सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पार्ट फिल्टर करती है। तो ब्लड में जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं वो नेफ्रॉन्स फिल्टर करते हैं, राइट। सो नेफ्रॉन्स एसेंशियली एक्ट एज अ स्ट्रेनर्स। स्ट्रेनर्स मतलब जैसे हम छानने का काम करते हैं उनको स्ट्रेनर्स बोलते हैं। तो नेफ्रॉन्स बेसिकली स्ट्रेनर्स हैं wherein useful substances are reabsorbed and harmful substances along with water are expelled as urine. So useful substances क्या होते हैं? हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और harmful substances filter out हो जाते हैं। So the urine produced by the kidneys travels through the pair of elongated tubes known as यूरेट्रस। अब यहाँ नेफ्रॉन्स कहाँ है? नेफ्रॉन्स है किडनी में। किडनी में नेफ्रॉन्स ने सारी जो गुड प्रोडक्ट्स हैं, गुड सब्सटेंसेस हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको यूरिन में कन्वर्ट कर दिया और फिर फाइनली वो यूरिन यूरेटर से होता हुआ कहाँ आ गया? यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा। अब एक बार में हार्डली हाफ लीटर ऑफ यूरिन कैन बी कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, राइट। सो ट्रेवल्स डाउन थ्रू अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड ट्यूब्स। और किडनी फेलियर क्या होता है? अगर हमारी किडनीज में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती है, तो दिस इज कॉल्ड किडनी फेलियर। तो उस केसेस में क्या होता है? पेशेंट को डायलिसिस कराना पड़ता है। आर्टिफिशियल किडनीज बोलते हैं इनको। और डायलिसिस हर बार कराना होता है क्योंकि हमारी किडनी काम नहीं कर रही है, तो हमें मशीन्स की हेल्प से डायलिसिस कराना पड़ता है। सो डायलिसिस मशीन्स होती हैं जिनकी हेल्प से वी गेट द डायलिसिस डन, राइट। तो इसमें भी यही होता है कि आपके ब्लड को एक साइड से ब्लड उस मशीन में जाता है, वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ फिल्टर होती है और फिर दूसरी साइड से वो ब्लड आपकी बॉडी में वापस एंटर होता है, राइट। द 2 यूरेट्रस कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेली स्टोर यूरिन until it is released from the urethra. The urinary bladder can hold about half a liter of urine. एक बार में कितना यूरिन स्टोर कर सकता है? half a liter. An adult passes about 1 liter to 1.5 liter of urine in a day. एक बार में एक adult person कितना डिस्चार्ज करते हैं यूरिन? 1 liter और 1.5 liter, right? The urethra is the tube that carries urine from urinary bladder to outside of the body. तो urethra एक ओपनिंग है जिसके थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से बाहर आता है। द आउटर एंड ऑफ द यूरेथ्रा इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलर मसल्स कॉल्ड स्फिंक्टर,
राइट। सो यहाँ पर कौन सी मसल्स होती हैं? स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो हमारी विश से एक्सपैंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स। और हार्ट में थी कार्डियक मसल्स जो अपने आप नॉन स्टॉप वर्क करती रहती है, राइट। सो नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन देखा, सर्कुलेटरी के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखा। अब प्लांट्स में कैसे सर्कुलेशन होता है? सो प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर एंड फूड फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ लाइक अस। Wilted leaves recover when water is added to the soil, right? अगर बिना पानी के कैसा होता है? लीव्स मुरझा जाती है, जब वापस से आप पानी दोगे तो वो फिर से फ्रेश हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। So leaves also need water for photosynthesis. The food produced in the leaves needs to be transported to the other parts of the plant, including the stem, roots, flowers, fruits, etc. For transportation of water and food is carried by the conducting tissues. So water क्या लेके जाता है? Water and minerals xylem tissues लेकर जाते हैं, और जो फूड लीव्स ने बनाया है वो लेकर आते हैं फ्लोएम टिश्यूज। कहाँ तक? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक। सो जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं, राइट। सो ये है जाइलम और ये है फ्लोएम टिश्यूज, राइट। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे conducting tissues. So xylem is responsible for transportation of water and minerals from the root, and phloem tissue transport food and leaves to all parts of the plant, right? So ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये क्यूटिकल है, उसके बाद अपर एपिडर्मिस है, फिर ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं? स्टोमेटास होते हैं जो कि गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड रहते हैं, और ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, right? So this is the microscopic view of a leaf. Transportation of water कैसे होता है? So transportation हमें पता है xylem tissues में होता है। So plants take in water through their roots. Roots have many tiny and thin root hair. Root पर क्या present होते हैं? Root hairs present होते हैं that absorbs water from the soil. So पानी कौन, water and minerals कौन absorb करता है? Root hairs. They are present on the roots. The amount of water absorbed is released to the number of root hairs. As the number of root hair increases, the area also increases. जितने ज़्यादा root hair होंगे उतना absorption area increase होगा. And the plant absorb more water and minerals. जितने ज़्यादा root hairs होंगे उतना ही ज़्यादा प्लांट क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, राइट, विच मीन्स एब्जॉर्प्शन एरिया इज increased. Water enters through the root hair and then move across to the xylem tissue. और ये वन वे ट्रांसपोर्टेशन है, ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होगा, राइट. सो xylem tissues are like water and minerals are moving in one direction only, right. So in the center of the root, the xylem transport water and minerals from the root through the stem to the leaves. So नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है. The upward movement of water and mineral is termed as ascent of sap. इसको क्या बोलते हैं? ascent of sap बोलते हैं. It is against gravity and is due to transpiration. So ascent of sap is upward movement of water and minerals from the रूट्स, और ये किसके थ्रू होता है? जाइलम टिश्यूज के थ्रू होता है, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी होता है. ग्रेविटी क्या होती है? ऊपर से कोई चीज़ अर्थ की तरफ आती है, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी एंड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन होता है evaporation of water through the leaves. So let us understand how the transpiration help in upward movement of sap. Sap is fluid containing water and dissolved nutrients. तो इसलिए इसको बोलते हैं sap. Sap में सिर्फ और सिर्फ water नहीं होता है, water plus nutrients. So that is why it is known as sap. Now
ट्रांसपिरेशन एज अ प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन कैसे काम करता है. सो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स. ये हमें पता है कि प्लांट से इवेपोराइज होना किसका, वाटर का, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं. वाटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर वेपर एंड एग्जिट्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. और कहाँ से होता है इवेपोरेशन, जो लीव की सरफेस पर स्टोमेटास होते हैं उनसे ट्रांसपिरेशन होता है. दिस इवेपोरेशन क्रिएट्स अ वैक्यूम, राइट. अब पानी निकल गया, राइट. अब पानी क्या हो गया, सारा इवेपोरेट हो गया. पानी निकलने के बाद क्या हो गया, अंदर वैक्यूम हो गया. वैक्यूम के बाद क्या होगा, दैट ड्रोज वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम टिश्यूज ऑफ द प्लांट. वैक्यूम होने की वजह से फिर से दोबारा से पानी रूट हेयर्स ने अब क्या करा, एब्जॉर्ब किया और जाइलम टिश्यूज में भेजा. द प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड असेंड थ्रू द स्टेम टू रीच देयर लीव्स. Along with the water, essential nutrients of plants' growth are also transported. The sun serves as a driving force behind the phenomena of transpiration. So transpiration leaves में stomatas के थ्रू होता है. जैसे ही पानी खत्म हो गया तो क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ. वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से रूट हेयर्स ने और पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए और फिर वो जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू होते होते प्लांट के डिफरेंट लीव्स तक पहुंच गए. तो ये किस वजह से हो रहा है, इसमें सन एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सनलाइट की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन होता रहता है, राइट. सो दिस इज हाउ ट्रांसपिरेशन इज बीइंग डन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. अब हमने ट्रांसपिरेशन ऑफ फूड का डिस्कस करेंगे. सो द फूड विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द फ्लोएम टिश्यूज, और कलेक्टिवली हम इनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं. सो सीव ट्यूब्स आर लिविंग सेल्स ऑफ द फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट फूड्स. किसके थ्रू, सीव ट्यूब्स के थ्रू होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटीरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं. ट्रांसपिरेशन वाटर का डिस्प्लेसमेंट है और ट्रांसलोकेशन फूड का displacement है. So this food is transported to all parts of the plant and plant body where it is required and can be stored as extra food in fruits, stems or other parts of the plant like roots. In Sydney, a large gum tree transpires nearly 200 liters of water in a day. सिडनी में एक पेड़ है जो कि एक दिन में क्या करता है, 200 लीटर से भी ज़्यादा वाटर को ट्रांसपायर कर देता है. Orchids growing on trees have hanging roots and absorb water from atmosphere. Such plants are called epiphytes. तो epiphytes क्या होते हैं, ये किसी और प्लांट्स पर उगते हैं, क्योंकि इनकी रूट सॉइल में नहीं होती है, किसी और प्लांट्स पर उग रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये एटमॉस्फेयर से वाटर कलेक्ट करते हैं और इसीलिए इनको एपीफाइट्स कहते हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी. सो टेक अ वेल पॉटेड मीडियम साइज पॉटेड प्लांट और एक ब्रांच को हमने क्या करा, पॉलिथीन से कवर कर दिया, राइट. और दूसरी में क्या करा हमने, दूसरी ब्रांच से सारी लीव्स हटा दी और उसको अब पॉलिथीन से कवर कर दिया और इसको अब आप रख दो थोड़ी देर के लिए और थोड़े टाइम बाद जब हम देखेंगे तो क्या होगा, बैग कंटेनिंग लीव्स हैव this has drops of water whereas leaf bag contains no water droplets. तो क्या होता है, जिस पॉलिथीन में यानी जिस ब्रांच को हमने कवर किया था जिसके ऊपर बहुत सारी लीव्स थी उसको हमने पॉलिथीन से कवर किया, सो उस पॉलिथीन की वॉल्स पर क्या होगा, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देंगी. और जिस ब्रांच को हमने कवर किया था जिसमें कोई लीव्स नहीं थी उस पार्ट को हमने जब पॉलिथीन से कवर किया उसमें कोई ड्रॉपलेट्स नहीं थी. सो इससे ये प्रूव होता है कि लीव्स ट्रांसपिरेशन करती हैं.
एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, अब प्लांट्स भी कुछ एक्सक्रीशन करते हैं एनिमल्स की तरह, हमारी तरह, लेकिन जो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, राइट? सो दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड अप इन ओल्ड लीव्स which falls off, breaks or vacuoles. Some of the waste products plant secretes are very useful for us. अब वो कौन कौन से वेस्ट हैं? पहला है टेनिन, सो टी लीव्स, आंवला एंड बीटल नट, जिसको हम सुपारी भी बोलते हैं, बीटल नट को, contain tannin. Break of some trees contain tannin which is used to process leather and मैन्युफैक्चर्ड इंक. तो टेनिन को हम लेदर मैन्युफैक्चरिंग में और इंक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज लेटेक्स. सो लेटेक्स क्या होता है? पपाया, फिग, इसमें एक मिल्की जूस कलेक्ट होता रहता है. एक्चुअली में वो प्लांट का वेस्ट होता है, लेकिन हमारे लिए वो यूज़फुल होता है, हम उसको लेटेक्स बोलते हैं, और मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है और रबर बनाने में भी यूज़ होता है. नेक्स्ट इज ऑयल्स. ऑयल्स जो है वो प्लांट का वेस्ट है लेकिन हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे कि बेसिल, तुलसी का, लेमन एंड यूकेलिप्टस कंटेन्स ऑयल. यूकेलिप्टस ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है, लेमन का, यूकेलिप्टस का, तुलसी का. सम प्लांट्स ऑयल्स वी कॉमनली यूज़ एज अ नीम ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, क्लोव ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल एट्सेट्रा, जबकि ये प्लांट का वेस्ट है बट हमारे लिए यूजफुल है. गम्स. गम्स आर स्टिकी वाटर सॉल्युबल वेस्ट. गम्स कॉमन गम ट्री बबूल इज यूज्ड टू मेक गम. नेक्स्ट इज रेजन्स. So found in stems of pine trees, raisins are soluble in alcohol and turpentine and make wood hard and strong, right? इसको लगाते हैं टर्पेंटाइन में मिक्स करके, तो ये वुड को स्ट्रॉन्ग बना देता है. नेक्स्ट इज एल्केलॉइड्स. सो दीज आर टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल क्विनान एंड मॉर्फिन आर स्टोर्ड इन चिंचोना ट्री एंड पॉपी प्लांट्स respectively. So caffeine in coffee seeds and nicotine in tobacco leaves are also alkaloid. So ये plants के भी waste हैं, but वो plants plants के waste उनके लिए waste है plants के लिए, but हमारे लिए useful है. Now let's memorize what we have learned in this chapter. Plasma. What is plasma? It is a fluid part of blood that contains 90 to 92% of water. Next is hemoglobin. Hemoglobin is a red color pigment in red blood cells which transport oxygen to the cells. तो RBCs हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है. और एनीमिया होता है जिनमें हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट होता है, एनीमिया होता है, और उनमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड. नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. सो आर्टरीज हैं और ब्लड वेसल्स क्या हैं? आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज. नेक्स्ट इज आर्टरी. So blood vessels that transport oxygen-rich blood from the heart to other part of the body. Vein is just opposite. These are the blood vessels that carry blood from body to the heart, which is low in oxygen and rich in carbon dioxide. इसमें carbon dioxide यानी deoxygenated blood ये body के different parts से heart तक लाती है. Next is arterioles. So these are thin branches of arteries. Next is capillaries. So narrow, very thin branches of arterioles which carry blood to the cells. Next is auricles, upper two chambers of the heart, and ventricles, lower two chambers of the heart. Next is pulmonary artery. So artery that carries deoxygenated blood from right ventricle to the lung. And next is pulmonary vein. ये exceptional है. Vein that carries oxygen rich blood from lungs to the
heart. Superior vena cava is the vein that carries carbon dioxide rich blood from the upper part of the body to the right auricle, or inferior vena cava is a vein that carries carbon dioxide rich blood from the lower part of the body to the right auricle. Next is nephron, filtering unit of the kidney. Xylem, tissues in plants that responsible for the transportation of water and minerals from the roots to the different parts of the plant. And phloem carries food that is made by the leaves to other parts of the plant. Right, children? Now points needs to be recalled. Circulatory system is responsible for transportation of nutrients, gases, water, etc. It consists of blood, blood vessels and heart. Blood is a fluid which contains red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. Arteries and veins are two main blood vessels in which blood flows. Next is heart is a muscular organ which pumps blood thoroughly the body, throughout the body. Next is heart beats due to the rhythmic contraction and relaxation of muscles present in the wall of the heart. Next is blood flows in the following direction in the body. Body parts, right auricle, right ventricle. After that it flows to the lungs and then it comes to the left auricle, then left ventricle, and from left ventricle it moves to the different body parts. The main excretory system in human is urinary system. Excretory products are also secreted by skin, liver and lungs. The organs associated with the urinary systems are pair of kidneys, ureterus, urinary bladder and urethra. Xylem tissues transport water and minerals from the root, and phloem tissues transport food made in the leaves to all parts of the body. Next is the process of evaporation of water from the pores called stomata present on the surface of leaves, and this is called transpiration. Now time to do the exercises. First question, darken the correct option in OMR sheet. The first question is the smallest filtering unit of kidney. The correct answer is nephron. So we need to darken the circle. I am doing the first one. This is the D option, right? Next question, which one of the following contains hemoglobin? So red blood cells contains hemoglobin. Next is the upward movement of water and minerals, which is called ascent of sap. Next is sieve tubes are living cells of the phloem. Next is blood collected by veins from all parts of the body first enters the right auricle. Children, next question is fill in the blank. First fill up is transpiration is the evaporation of water from the plants. Next is the partition between the two chambers, auricle and ventricle. This is called septum. Third fill up is red blood cells contain a red color pigment which is known as hemoglobin. Heart is made of specialized cardiac muscles called cardiac muscles. Fifth one, platelets help in the clotting of blood. Next question, children, state T for the true and F for the false statement. First statement, roots absorb water through the root hair and then it moves through the xylem tissue and it carried to the various part of the body. Yes, this is true. Next statements, veins have walls to prevent the backflow of deoxygenated blood. Again, true. Statement number 3, arteries divide further into smaller vessels called veins. This is false. Next is lungs remove excess of water, salt, urea and uric acid in the form of sweat. Again, false. A person can bleed to death if his or her platelets become very less. Yes, this is true. Next question, very short answer type question. First question under this category.
Name the components of circulatory system. Components of circulatory system are heart, blood vessels. Blood vessels includes arteries, veins and capillaries. Also blood, which includes RBCs, WBCs, plasma and platelets. Question number 2. What is the function of hemoglobin? Hemoglobin transports oxygen. What is function of valves in the heart? So valves in the heart ensure one-way blood flow. Next is, which type of blood does a pulmonary artery carries? It carries deoxygenated blood from heart to lung. Next is, which two veins collect carbon dioxide rich blood from the body to heart? It is superior vena cava and inferior vena cava. Next is, what is transpiration? So transpiration is the release of water from plants into atmosphere. So children, next is short answer type question. First question is, what is the circulatory system? Name its main organs. So circulatory system transports blood, nutrients, oxygen and waste products throughout the body. It includes heart, blood vessels and blood, right? Question number 2, write the functions of blood. The blood transports oxygen, nutrients, waste and aids in clotting of blood. Question number 3, write any 4 differences between arteries and veins. So it's already given in your chapter. You can write down from there. Question number 4, answer the following question related to the heart. First part is, what is its location? So it is located in the chest cavity between the lungs. B part is, what is its size? So its size like a closed fist. Next is, how many chambers does it have? It has 4 chambers. Which vein supplies originated blood to it? So pulmonary vein supplies oxygenated blood. Question number 5, write the direction of flow of blood in our body. So blood flows from the heart to the body's tissue through arteries, delivering oxygen, and returns to the heart through veins carrying carbon dioxide. It then goes to the lungs to pick up oxygen and releases carbon dioxide before returning to the heart. Question number 6, which organs in humans help in excretion of waste products? So organs such as kidneys, liver, skin, lungs and large intestine excrete waste products from the body. Question number 7, how is urine formed in the kidney? Urine formed in the kidney through filtration of blood, reabsorption of essential nutrients or substances, secretion of waste products and concentration before being collected and eliminated from the body. Next is long answer type question. Again, your homework. Would appreciate if you will do the answers on your own. Right, children? So that's all for this chapter. We'll meet in the next class of science. Till then, bye and take care.